Hello students, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Dear students, this is chapter 13, pressure belts and types of winds. In this chapter, we already discussed related to atmospheric pressure, measurement of atmospheric pressure. After that, we discuss factor affecting the atmospheric pressure, and after that we discuss major pressure belt of the world, and after that we discuss types of wind, or inside the types of wind we discuss planetary wind, seasonal wind, and local wind. Okay, so now today we discuss here the last topic of this chapter, that is cyclone and anti cyclone. जेट स्ट्रीम जो ये टॉपिक है, नाउ दिस ईयर ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. ठीक है, सो नाउ टुडे वी डिस्कस हियर साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन. दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 13. So cyclone. So what is a cyclone? A cyclone is an area of low pressure in which the wind blow in an anti-clockwise direction in northern hemisphere and clockwise in southern hemisphere. Means this is your, suppose this is your equator, 0 degree, 0 degree से upside the northern hemisphere and south side southern hemisphere. Okay. सो साइक्लोन मीन्स क्या है कि इन द सेंटर आपका क्या है, लो प्रेशर है, और सराउंडिंग ऑल साइड हाई प्रेशर है. ठीक है, सो आपकी विंड मूव करती है ऑल साइड से सेंटर की तरफ, बट साथ में क्या बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड हियर आल्सो लो प्रेशर इन द सेंटर, हाई हाई हाई, और विंड ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. क्लियर? तो विंड हियर क्लॉकवाइज. ये क्या आपका साइक्लोन है. ठीक है, और ये साइक्लोन जो क्रिएट हो रहा है इन सर्कुलर मैनर में, वो ड्यू टू द अर्थ रोटेशन की वजह से. ओके, सो विंड डायरेक्टली मूव करी फर्स्टली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट अर्थ की रोटेशन की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, कोरिस फोर्स. ओके, सो ड्यू टू दैट आपके साइक्लोन ऑरिजिनेट हो रही है. सर्कुलर शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं. क्लियर? सेंटर में लो प्रेशर होता है और साइड में हाई, तो विंड आपकी हाई टू लो चलती है, और अर्थ रोटेशन की वजह से ये सर्कुलर शेप में आ जाते हैं. तो नदर हेमिस्फीयर में इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज, और सदर हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज. ओके, सो नाउ a cyclone is an area of low pressure in which the winds blow in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise in southern hemisphere. So anti-clockwise in northern hemisphere and clockwise in southern hemisphere. So 0 degree is upside northern hemisphere or downside southern hemisphere. So now the pressure in the central part of the cyclone is very low and the wind from all round rushes towards the center. कि आपका सेंटर में लो प्रेशर होगा, साइड में आपका हाई होगा, तो आपकी विंड मूव करेगी हाई टू लो. ओके, और सेंटर में लो प्रेशर क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, दैट्स व्हाई प्रेशर लो है. तो यहाँ पर वार्म एयर कलेक्ट होगी, और वार्म एयर यहाँ से एक्सपेंड होगी और वो ऊपर की तरफ उठेगी, और अर्थ रोटेशन की वजह से लाइक अ सर्कुलर शेप लाइक दिस आपको ये साइक्लोन होता है. ठीक है, तो इस तरह की विंड क्रिएट हो जाती है नदरन और सदर्न हेमिस्फीयर में. सो द एयर राइजेस रैपिडली इन द जोन ऑफ लो प्रेशर, देयरबाय प्रोड्यूसिंग स्पाइरलिंग या सर्कुलेशन शेप में. इसकी ओवल शेप होती है, सर्कुलर शेप होती है. ओके, एंड साइक्लोन आर एसोसिएटेड विद टर्बुलेंट वेदर कंडीशंस. और साइक्लोन में क्या होता है, वेदर बट टर्बुलेंट फास्ट विंड चलती है, विंड की वेलोसिटी स्पीड ज़्यादा होती है, क्लाउडीनेस होते हैं, और हैवी रेनफॉल होती है. These are the characteristics of cyclone. And now cyclone are generally categorized as a tropical cyclone and temperate cyclone. Okay, so cyclone divided into two parts, tropical or temperate. Okay, so firstly I will tell you what is a tropical or what is a temperate. After that we discuss tropical cyclone and tropical
temperate cyclone. This is your Earth, and this line is equator. This is Tropic of Cancer. This is Arctic Circle, Antarctic Circle, or this one Antarctic Circle. Means equator, Tropic of Cancer, Arctic Circle, Tropic of Capricorn, or this one Antarctic Circle, और 90 degree south pole और ये north pole. Okay, so those area lie between the Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn called tropical zone. ये क्या आपकी tropical zone है, ठीक है. And those area lie between the Tropic of Cancer to Arctic Circle in northern hemisphere and Tropic of Capricorn to Antarctic Circle in southern hemisphere is called temperate zone. Okay, तो सिंपल सी बात है, हम बात करें यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन की और टेम्परेट. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन मीन्स दोज आर ओरिजिनेट इन द ट्रॉपिकल जोन, उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन. और टेम्परेट साइक्लोन मीन्स दोज आर ओरिजिनेट इन द टेम्परेट जोन. जनरली जो इजी वे पे आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आपकी बुक में थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है. सो लिसन वेरी केयरफुली. फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटिंग इन द ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनेट द टेम्परेट जोन. क्लियर. सो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर ओरिजिनेट इन द ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनेट इन द टेम्परेट जोन. ओके, दिस इज टेम्परेट जोन आल्सो, टेम्परेट जोन. सो tropical cyclone originating in the tropical zone and temperate cyclone originating in the temperate zone. Second point, the wind velocity is very high. जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है, तो यहाँ पर विंड वेलोसिटी हाई होती है और हियर विंड वेलोसिटी वेरी लो. तो मीन्स क्या होगा कि इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन द विंड वेलोसिटी इज वेरी हाई और इन द टेम्परेट साइक्लोन में विंड वेलोसिटी इज वेरी लो. दिस इज सेकंड पॉइंट बिटवीन द टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन. फर्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट इन द ट्रॉपिकल जोन एंड सेकंड पॉइंट टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनेट इन द टेम्परेट जोन. सेकंड पॉइंट द विंड वेलोसिटी इन ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा हूँ, द विंड वेलोसिटी इज वेरी हाई और इन द टेम्परेट साइक्लोन में विंड वेलोसिटी इज वेरी लो, कि विंड की जो स्पीड होती है वो कम होती है. ओके, एंड नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन ये भी किसे आर मोर एक्टिव इन विंटर सीजन जो टेम्परेट है, और ट्रॉपिकल ऑरिजिनेट ये भी कैसे मोर एक्टिव इन समर सीजन. तो ये आपका समर सीजन में ये एक्टिव है और दिस वन विंटर सीजन में एक्टिव है. ओके, सो tropical cyclones are more active in summer season and temperate cyclone more active in winter season. Okay, this is the third point. Okay, और बेस्ट एग्जांपल है जो टेम्परेट साइक्लोन का होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ठीक है, और ये इंडिया के नदर पार्ट को अफेक्ट करती है. एंड जो हमारे साइक्लोन्स है ऑरिजिनेटिंग इन द बे ऑफ बंगाल, जो इंडिया यहाँ पर नीचे बे ऑफ बंगाल में ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है, और अफेक्ट करते हैं उड़ीसा कोस्टल एरिया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून जुलाई. ओके, एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. क्लियर. सो दिस आर 4 पॉइंट दैट सेपरेट द टेम्परेट टू ट्रॉपिकल. ओके, सो आई एम सेइंग अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन और द ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट साइक्लोन और द टेम्परेट जोन. The wind velocity is very high in tropical cyclone. The wind velocity is very low in temperate cyclone. And here, these are more active in summer season और these are more active in winter season. ये समर में एक्टिव हो रहे हैं, विंटर में हो रहे हैं, ठीक है. विंड वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक है. और यहाँ का जो मेन एग्जाम्पल है आपका इन इंडिया वो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, विच कॉज rainfall in Punjab, Haryana. Okay, yeah, because it's another part of India. Okay, and if we talk about cyclone originating in the
ट्रॉपिकल जोन में, तो वो कौन से आपके, these are originated in the Bay of Bengal and affect the West Bengal, little bit part West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, ठीक है, during the month of June or July, ठीक है, these are the example of tropical cyclone. Okay, so according to book वही बातें यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन जो सेपरेट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो नियर अबाउट 8 डिग्री लैटिट्यूड टू 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होते हैं। सो पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है, कि आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जो ऑरिजिनेट होते हैं वो जीरो इक्वेटर के पास में 8 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ बोथ साइड आपके ऑरिजिनेट होते हैं। क्लियर? बाकी फर्दर पॉइंट आपने वही मेंशन करने जो आपको मैंने बताए। फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑरिजिनल ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट साइक्लोन ऑरिजिनल टेम्परेट जोन। क्लियर? एंड सेकंड पॉइंट, द विंड वेलोसिटी इज वेरी लो इन द टेम्परेट साइक्लोन और विंड वेलोसिटी इज वेरी हाई इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड टेम्परेट साइक्लोन जो ऑरिजिनेट होते हैं या मोर एक्टिव होते हैं इन विंटर सीजन में, और ट्रॉपिकल मोर एक्टिव इन समर सीजन। ओके, और टेम्परेट का जो बेस्ट एग्जांपल है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, और ट्रॉपिकल का जो एग्जांपल की बात करें तो आपके जो साइक्लोन वेस्ट बंगाल में सॉरी बे ऑफ बंगाल में ऑरिजिनेट होते हैं और ये उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश की कोस्टल एरिया को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? सो दिस इज टॉपिक टुडे वी डिस्कस हियर। एंड वन मोर पॉइंट, स्पीड। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो डायमीटर होता है वो नियर अबाउट 80 टू 320 किलोमीटर होता है। और इफ वी टॉक अबाउट स्पीड ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, तो इनकी जो स्पीड होती है वो एवरेज स्पीड है वो 30 टू 50 किलोमीटर पर आवर, और डेली की चेक करें तो 800 टू 1100 किलोमीटर पर डे। ओके, सो दिस योर टॉपिक टुडे वी डिस्कस हियर साइक्लोन। एंड नाउ लास्ट टॉपिक, एंटी साइक्लोन। सो जैसे नेम से क्लियर है, एंटी साइक्लोन, तो साइक्लोन का अपोजिट एंटी साइक्लोन। ठीक है, सो साइक्लोन में क्या था हमारा कि नदर हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए कि सेंटर में हमारा लो प्रेशर है, सराउंडिंग में हाई है। ओके, और आपकी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आपको बात करें एंटी क्लॉकवाइज की तो सेंटर में आपका हाई क्रिएट होगा और साइड में लो, और आपकी विंड हाई टू लो चलेगी, सेंटर से बाहर की तरफ मूव करेगी। और ये क्लॉकवाइज है इन द नदर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, मींस अपोजिट ऑफ द साइक्लोन। क्लियर? उसको होते हैं एंटी साइक्लोन। एज द नेम सुजेस्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी साइक्लोन आर अपोजिट ऑफ दोज ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन को अपोजिट है कि एंटी साइक्लोन आर सेंटर ऑफ द हाई प्रेशर। देखो इसमें क्या था, सेंटर में लो प्रेशर था, इसमें हाई है। ओके, एंड center of high pressure and surrounded by low pressure. So due to center high pressure, the wind diverges from the anti-clockwise area and flow anti-cyclonic area and flow of area clockwise in the northern hemisphere. जो आपका साइक्लोन थे वो एंटी क्लॉकवाइज थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो एंटी साइक्लोन है ये क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, like this is a figure given here, clockwise in the नदर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। सेंटर में हाई प्रेशर होगा और साइड में लो होगा। ओके, दे आर जनरली एसोसिएटेड विद जोन ऑफ डिसेंडिंग एयर कॉजिंग अ हाई प्रेशर, कि आपकी विंड यहाँ से बाहर की तरफ मूव करेगी और डिसेंड नीचे की तरफ उतरेगी, दैट्स व्हाई यहाँ प्रेशर हाई होगा। और डिसेंडिंग एयर गेट वार्म अप, और जब भी नीचे उतरती एयर होती है वो वार्म होती है, एंड देयरफॉर देयर इज नो कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तरह की हैवी रेफॉल नहीं होती है। ओके, द साइक्लोन्स अनलाइक द साइक्लोन ब्रिंग अ फेयर सनी वेदर, ये वेदर यहाँ अच्छा होता है, लेकिन अगर बात करें साइक्लोन की तो वहाँ पर स्टॉर्मी वेदर होता है। दे आर रिलेटिवली स्टेबल इन देयर लोकेशन। द प्रोमिनेंट एंटी क्लॉक या के एंटी साइक्लोन रीजन्स आर सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर एंड पोलर बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर, मीन सब ट्रॉपिकल और जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे ये क्रिएट होते हैं। क्लियर? वी कैन से कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंटी साइक्लोन जो है वो अपोजिट ऑफ द साइक्लोन है। ओके, एंड लास्ट टॉपिक जो जस्ट थीम है दिस, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश हियर। थैंक यू।